गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए हम प्रभु के वचन से सुने। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका 25वां भजन और उसके 3 से 5। आज देखें हमारे लिए प्रभु ने क्या वचन रखा है। भजन 25 3 से 5 जहां पर ये लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। आप देखें, दाऊद को ये भरोसा है, ये कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर उसके साथ है, उसे बचाने के लिए आएगा। और खासकर वो लोग जो उसके दुश्मन हैं वो उस पर जो है पतन नहीं होंगे। जिस समय जो लोग हैं विदाउट प्रोवोकेशन उस पर आक्रमण करते हैं वो लज्जित होंगे। आप देखें, बात कही गई है जब उसका दूसरा अध्याय 9 पद में, Job chapter 2 verse 9, chapter 2 verse 9. It says, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. आप देखें दाऊद के जो 3 मित्र थे वो आए, एक एक करके उसे समझाने लगे, बताने लगे उन्हें कुछ गुनाह किया है। यहाँ तक कि जो अयूब है उसकी पत्नी भी कह रही है, क्या तो अभी तक भी चुप है? अरे परमेश्वर को कोस, उसे कर्स कर, मर जा तो मर जा, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखें दाऊद जो है वो कह रहा है परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे सहायता करने के लिए आएगा। आप देखें अयूब जो है उसके 42वें अध्याय 7-8 पद में क्या कहता है। Job chapter 42 verses 7 to 8. After the Lord had said these things to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your 2 friends, because you have not spoken the truth about me, as my servant Job has. So now take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and sacrifice a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer and not deal with you according to your folly. You have not spoken the truth about me, as my servant Job has. आप देखें अयूब जो है बाद में उसे परमेश्वर ने आशीष दी, पहले से ज्यादा आशीष दी। जो अयूब उसका 42वां अध्याय 12 पद। Job chapter 42 verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. परमेश्वर ने उसका सब कुछ जो करते हो कर दिया, पहले से ज्यादा आशीष दी। बट वी ऑल कैन ट्रस्ट गॉड। हम जो है सब जो है परमेश्वर में भरोसा रख सकते हैं। आप देखें बात कही गई है इब्रानी उसका 11वां अध्याय 13 से 16 पद में। Hebrews chapter 11 verses 13 to 16. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Amen. आप देखिए बस 5 में दाऊद क्या कहता है। Verse 5 of
Psalm 25 verse 5 says, Guide- verse 4. verse 4. It says, Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Show me your ways, Lord. Teach me your path. आप देखें दाऊद जो है बड़ा कंसर्न है परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए। आप देखें बात जो कही गई है वो कही गई है जो सुबह उसका प्रभु उसका 3 अध्याय 5 से 6 पद। And this is the favorite verses. These are the favorite Yeah. verses of our family. Yeah, we taught our son when he was That's right. young, isn't it? Yeah. So Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. अपनी बुद्धि का सारा मत लेना। In all your ways, submit to him and he will make your paths straight. Straight. Hallelujah. अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो तेरा मार्ग जो है सफल करेगा, सीधा करेगा। आप देखें बात कही गई है नीति वचन उसके 14-12 में। Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. एक रास्ता है लगता तो अच्छा है लेकिन अंत में मृत्यु है उसके। आप देखें ये बात कही गई है जेम्स उसके 3-4 अध्याय के 13 से लेकर 16 पद में। James chapter 4 verses 13 to 14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है गाइडेंस के लिए। मैंने आपसे कहा कि लाइफ जो है एक यात्रा है, एक कदम नहीं है, इसे जर्नी। आप देखें बात यहाँ पर दाऊद कहता है भजन 119-105 में। Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet and light on my path. तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक मार्ग के लिए उजियाला है। पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप देखें डिटोनॉमी उसका 27वां अध्याय 27 से लेकर 30 अध्याय में बात कही गई है। बड़ी भयंकर बात है जो हमारा जीवन है एक यात्रा है, केवल शॉर्ट नहीं है। आप देखें जो जोशुआ है उसके पहले अध्याय के 7 से अगले 8 पद में कहा गया है परमेश्वर में साथ रहेगा, वे वादा किया है वह दृढ़ करेगा। जोशुआ चैप्टर 1 verse 7 to 8। Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. पुस्तक तेरे शिष्य कभी उतरने ना पाए। आप देखें दाऊद अपने जीवन में वेट करने के लिए कहता है परमेश्वर पर, उसके मार्गों पर चलने के लिए कहता है। आप देखें यहाँ जो वे है वो बार आए, 4 बार आया है, जो बात है वो 2 बार आए। आइए फिर से एक बार परमेश्वर पर भरोसा रखें। 25:5 पढ़िए प्लीज। Psalm 25 verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Amen. मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी अगुवाई कर ताकि मैं मेरे पूरे जीवन भर तेरे साथ चल सकूं, तेरे सामने चल सकूं। आइए फिर से एक बार परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे मांगे तो आखिर हमारी अगुवाई करे। Amen. तो हमारी प्रार्थना है,
हमारे जीवन में, हमारे चल जीवन में वो आप हमारी अगुवाई करें। मैं आप पर पूरा कामिल भरोसा है, विश्वास ही हूँ। Yes, Lord. लॉर्ड हमारे जीवन में हमारी सहायता करें, हमारे जीवन को प्रभु आप आशीष में बनाएं। हमारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमें से हर एक बनी रहे, हर एक के साथ बने रहे। आमीन, आमीन। तुम में बने रहिए, तुम के साथ चलिए। Amen. वो आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा। Yes, Lord. Thank आमीन। you.